जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव. And we are at a new location because I tell you what happened. The Pinnacle Corporate Park, where our studio is located, it caught fire. Pradeep Yes, ji. it's got fire. And by the way, Pradeep ji is the person who has to be given credit for the fact that he actually rescued everybody because everybody didn't know what to do. So Pradeep ji went from office to office and he actually got people to come out of their offices and run down the stairs. So Pradeep ji, Yes, great work. yes, Fantastic and work. like we always do, and people were concerned with the news, we knew where the fire brigade was, where everything was. We coordinated everything, got the fire brigade on board, and let me tell you, they all came within 10 minutes, and the way they dashed 10 floors up, every man running 10 floors up. Now that kind of a stamina, quickness, and the fit fire brigade, you need to appreciate that. Mumbai Wonderful, has got a fit- absolutely wonderful. these guys can climb 20 to 30 floors at a stretch and they're not tired. That's the fitness level of the fire brigade I've तो seen. कहने का मतलब ये हुआ, एक बार फिर मुंबई के जो फायर ब्रिगेड है उसको हमारी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद. और सबसे बड़ी बात की हुई प्रदीप जी कि पिनिकल कॉर्पोरेट पार्क बीकेसी में जो लोकेटेड है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वहां पर किसी को भी इंजरी तक नहीं हुई. Nothing really happened. Nothing happened at all. Fantastic. Of course, the whole thing is being repaired right now. So that's why we are at a new location right now and we are coming to you from there. So Pradeep ji, new parliament? Bilkul sir. And Fantastic. Already fireworks have started. Fireworks have started. I think the India Alliance, I saw Rahul Gandhi, a different Rahul Gandhi. जी. He's not the prank who, Rahul Gandhi who played prank, used to जाके जादू के चप्पी डालना. He acted very responsibly, very sensibly. Om Birla is coming, a speaker is coming. He goes along with Prime Minister Modi, escorts him to the speaker's chair. That kind of maturity. And he shakes hands with the speaker, then shakes hands with Mr. Modi. Bilkul sir. And Mr. Exactly. Modi shakes hands with him. Yes. Which is fantastic. I hope that bonhomie and friendliness remains all throughout the session. Bilkul But I sir. doubt it very much. क्योंकि अभी भी वो सेंगोल जो है उसको लेकर के अब बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं. वो सेंगोल हटाइए वहाँ से, वो राजदंड है उसको हटाइए. अरे भाई वो सेंगोल जो है वो सिंबल किस चीज़ का चिन्ह है? वो चिन्ह इस बात का है कि जो राजा है वो कंट्रोल में रहे. Exactly sir. अरे आप लोग अपनी ही आर्गुमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं. अगर आप चाहते हैं कि वो सेंगोल हटा दिया जाए, Exactly. इसका मतलब आप ये हटा रहे हैं कि राजा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहना चाहिए. Yes, yes. अरे भाई क्या The BJP has got a fantastic talk about the symbol. They said अमृत काल का सिंबल है. ये अमृत काल का सिंबल है और सिंबल अमृत काल का यह है कि इंडिया इज गोइंग टू लीड इन द कमिंग जो विकसित भारत के सपने देख रहे हैं. इंडिया इज गोइंग टू बी प्लेस्ड एज नंबर 1 एंड सिंगल इज अ सिंबल ऑफ इंडिया सुप्रीमेसी. जबरदस्त बात है ये. बिल्कुल. मेरा ये कहना है कि शुरू से आज तक अगर आप देखें जितने भी लेफ्टिस्ट कांग्रेस ओरिएंटेड जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्होंने हमेशा भारत की विरासत को, स्पेशली जो नॉन मुगलिया विरासत है या नॉन अंग्रेज विरासत है, उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है. उसमें कोई दो राय नहीं है. जैसे आज तक आप राम सेतु को एडम्स ब्रिज बोलते हैं. अरे क्यों बोलते हैं भाई? राम सेतु है यार. 4000-5000 साल पहले वेदों में, पुराणों में उसका पूरा विवरण है कि ये राम सेतु है. आप उसको अभी तक एडम्स ब्रिज बोलते हो. मतलब क्या है ये? Why should you? As you've been always, espousing this cause particular thing कि पुराण में हमारे इस चीज का अगर जिक्र है, मेंशन है, तो how are we taking this so lightly? In fact, you castigated the BJP government. Then when Modi came, when Prime Minister Modi took over, among the things that he was going to revive, जो कह रहे विरासत भी हम संवारेंगे, इस विरासत को संवारिए. और अभी तक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी. Yes, sir. और उसको विड्रॉ इसलिए किया, वापस इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया है उच्चतम न्यायालय में कि हम लोग इसको एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं. Exactly. नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट Yes, डिक्लेयर yes, कर रहे हैं. आज तक नहीं हुआ. अरे आज तक नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ यार. तुम्हें हो क्या गया है? मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से, अरे भाई अगर आपने ये तय कर लिया, फॉर एग्जाम्पल प्रदीप जी यहाँ के सामने बात रखता हूं. Yes. आपने ये तय कर लिया कि हिंदुत्व के ऊपर हम लोग चलेंगे तो पूरे चलो ना. ये आधा ये नहीं होता कि 4 स्टेप आगे 6 स्टेप पीछे. Sorry. ये नहीं होता You सर. can't. व्हाट आर यू स्कैर्ड We ऑफ? can't. अरे भाई इस चक्कर में आपकी 63 सीटें कम आ गई. मैं सीधी बात बोलता हूँ. बिल्कुल अगर आज आप इफ यू हैड बीन ट्रू इवन टू द कॉज ऑफ हिंदुत्व, देयर वाज नो वे दैट यू कुड हैव लॉस्ट. सबसे बड़ी चीज क्या होती है हिंदुत्व में? हिंदुत्व में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? विनम्र रहना, Yes, अहंकार नहीं होना. Yes, yes. जो सब चीजें आदरणीय सम्मानीय मोहन जी भागवत जी ने कहीं, और उसके बाद इंद्रेश कुमार जी ने जो एक एक चीज रेस करी, और उसके बीच में रतन शारदा जी ने जो आर्टिकल लिखा Yes, exactly. में, उसमें गलत क्या है?
एक एक चीज तो ठीक है, अगर आप अभी भी अहंकार से चलेंगे तो भैया वापस 2 सीटों पे पहुंच जाएंगे। प्रदीप, एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग इज अहंकार। एज आपने महाराष्ट्र में करीबन 13 जो टॉप के लोग हारे हैं, एंड इवन द सेंट्रल कैबिनेट अराउंड 10 to 12 टॉप मिनिस्टर्स हैव लॉस्ट, इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी। नाउ दिस शोज दैट एरोगेंस, एंड वी हैव सीन क्लियरली स्मृति ईरानी वाले इशू में हम लोग देखें कि शी वाज एब्सोल्युटली एरोगेंट एंड द पीपल रिस्पोंडेड टू एरोगेंस इन सच अ मैनर। नाउ वी हैव टू सी, एज यू सेड, हमारे विरासत में प्रणाम, झुकना, अपने आप को बहुत इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, जो मैं मोदी जी के मैं निमित्त हूं। तो व्हेन यू आर निमित्त, यू डोंट हैव एन ईगो दैट माई सेल्फ, दैट आई एम बिग और मैं ये हूं, मैं हूं। तो उस चीज को भी अगर फॉलो करते, जो मोदी जी ने भगवत गीता का उन्होंने कहा निमित्त मात्रम, तो इस चीज को भी आप फॉलो करें। आप नहीं फॉलो किए, एरोगेंस केम इनटू यू, मोहन भागवत जी ने कहा, ऑर्गेनाइजर ने कहा, आफ्टर दैट इंद्रेश कुमार जी ने कहा। तो दिस I think they have mellowed down. They have understood. I hope so. I hope BJP understands what they have done. and they should not listen to above all वो जो जिसको आजकल जो ऑपोजिशन वाले गोदी मीडिया कहते हैं। बिल्कुल सर। अरे भाई मेरी बात सुनिए, जहां तक कि मीडिया के एंकर्स वगैरह का सवाल है, एटलीस्ट पढ़ के तो आया करो यार। अरे कुछ तो अकल हो तुम लोगों में, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, एटलीस्ट पढ़ाई तो कीजिए। Exactly. जो सब्जेक्ट ऑन हैंड है डिस्कशन के लिए, उस पर तो पढ़ाई कर लीजिए। खैर चलिए, those people are far better, you know, at this than we are. I am reasonably certain Mr. Modi, Mr. Shah, Mr. Nitin Gadkari, Mr. Rajnath Singh, and everybody else would have worked it out as to where what went wrong. Exactly. I hope so. I no, second thing, what I would like to say, because people were impressed about what you talked about in Mumbai, महाराष्ट्र में जो एक विद्रोह चल रहा था मुंबई कांग्रेस के अंदर। मुंबई कांग्रेस के लोग जाके एक डेलीगेशन मेट खड़गे साथ asking for a change where वर्षा गायकवाड़ is concerned। you जो स्टैंड आपने लिया है, वो स्टैंड बहुत सारे कांग्रेस के जितने लोग हैं मुंबई महाराष्ट्र के, they are very happy about the stand you took. That's a fantastic stand. Now, here's a lady, Varsha Gaikwad, who comes, beats Poonam Mahajan's victory. She breaks that entire track record after 2. अरे वो पूरा पैटर्न खत्म कर दिया भाई। कैरम कर दिया, 2 पूनम didn't give the ticket this time. प्रिया दत्त जी जहाँ से 2 बार हारी, Exactly. वहां से वर्षा गायकवाड़ जी जीत गई, जबकि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो धारावी से हैं। धारावी से। और वहां से वो जीत गए। Yes, yes. सीधी सादी बात है। और उनको आप हटाना चाह रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है। ये कांग्रेस का शुरू से रहा है प्रदीप जी, वो किसी को भी सफल नहीं होने देना चाहते। अभी तक हमें ये लग रहा था कि जो लोग कांग्रेस से गए, अब कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए, लेकिन वो जो डेलीगेशन गया है उधर, उसमें सभी लोग दिख रहे हैं, सभी के सभी दिख रहे हैं उसमें। मतलब मैं तो बड़ा अचंभित हूँ इस बात को लेकर के। बट वन थिंग अबाउट वो डेलीगेशन में वही लोग गए थे, they were not much of a grassroots people, they were not, you can say, mass movement जो है, जो लोगों के बीच में बैठने वाले लोग, उसमें बहुत कम दिखे सर। जो कहते कि people who can make a following। लेकिन हमें इस बात का बड़ा ताज्जुब है कि नसीम खान जी उसमें क्या कर रहे थे। नसीम खान तो मतलब वो तो लोगों के लोग हैं यार, वो तो मतलब हमेशा इस बात, चलो हार गए, अपनी एमएलए की सीट को हार गए, लेकिन नसीम खान साहब उसमें जाना मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि उनको नहीं होना चाहिए था उसमें। जहाँ तक अमरजीत सिंह मनास साहब का सवाल है या चरण सिंह छापरा साहब का सवाल है, इन सबका होना ठीक है, मानते हैं हम लोग। अपने हमारे भाई जगताप साहब जो हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन फिर भी कितने चुनाव जीते हैं वो, कितना ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट है उनका। आदरणीय सम्मानीय चरण सिंह छापरा भी कांग्रेस के लॉयलिस्ट है, मानते हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हर बार मुलुंड से हारे हैं। जीतेगा मैं नहीं। तो ये यहाँ पे वर्षा गायकवाड़ जी हैज ब्रोकन द एंटायर पैटर्न ऑफ कांग्रेस लॉसेस, कांग्रेस डिफीट्स। Yes. एंड शी इज वन, Yes. एंड यू आर गोइंग अहेड एंड आस्किंग फॉर हर रिमूवल। मतलब ये क्या है? I mean, it doesn't make sense, and I don't think people of the Mumbai Congress, the mass जो है, वो they will never accept this kind of thing, because they are totally with Varsha Gaikwad. Varsha Gaikwad has actually transformed the Mumbai Congress. She has transformed the North Central ward from where she has won. People came out, flocking out for her. उनका एक call, that there were 2 things, that she reached out to the people, reached out to the poorest of poor, reached out in every nook and corner of the constituency, and people responded in a bigger manner, जो बोलते हैं ना, disproportionately। और प्रदीप जी दलित लीडर हैं। Yes, बिल्कुल। आप उनको चेंज करोगे, क्या मैसेज जाएगा आपका? Totally। क्या मैसेज आने वाला है आपका? सीधी सादी बात है, मतलब वर्षा गायकवाड़ जी को आप हाथ नहीं लगा सकते। नहीं। और अगर मान लीजिए कांग्रेस के नेतृत्व ने वर्षा गायकवाड़ जी को बदल दिया, तो याद रख लीजिए कांग्रेस का फिर वही हाल होगा जो पहले था। सीधी बात। जो कि अभी एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि ये लोग पेड़े बांट रहे हैं, काहे के पेड़े बांट रहे हो भाई? हार के पेड़े बांट रहे हो।
तुम पेड़े बांट रहे हो और उधर मोदी जी बैठ गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे जी, जिस प्रकार से एकनाथ जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वोट अमॉन्ग द शिवसेना उद्धव ठाकरे देखेंगे, उद्धव शिवसेना एकनाथ शिंदे देखेंगे, ही क्लेम्स टू हैव गॉट मोर परसेंटेज ऑफ द वोट्स. He says most of the popular vote has come to Eknath Shinde. The people have recognized within the Sena, बाला साहब ठाकरे जी के जो विचारों पे चलने वाले लोग हैं, वो कहते हैं एकनाथ शिंदे जी claim that they have actually voted more for him rather than उद्धव ठाकरे जी. And then he says, आप एनालिसिस निकालो, आप मुझे बोलिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, I've got more percentage of votes. But it is absolutely true. Yes. It is absolutely true that the Uddhav Thackeray Sena, which traditionally depended upon the Maharashtrian vote, Yes, and mostly the vote from Konkan. Yes. For the first time, they have got new voters. बिल्कुल, They have got बिल्कुल, Dalits, बिल्कुल. Yes. And they have been able to attract the Muslim vote. बिल्कुल. पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पूरा मुस्लिम वोट है वो उद्धव ठाकरे जी की तरफ गया है। Yes, तो yes. मेरा ये कहना है कि ये नए वोटर है भाई। हर देखिए साहब, अडेप्ट, एवरीबडी हैज टू अडेप्ट, एंड वी स्टिल डोंट नो whether Mr. Ravindra Vaikar's victory will actually stand or not. We don't know because Mr. Kirtikar has challenged it in the court. Yes. Let's see what happens. Yes. But all I'm saying is, on that, Eknath Shinde ji is not wrong. It is absolutely true. But what Eknath Shinde ji is not saying is कि भाई वो पुराना सिंबल जो है तीर कमान, अब बिना सोचे समझे आदमी तीर कमान पे ही लगाएगा ना, मशाल पे थोड़ी लगाएगा। मशाल इतना ज्यादा वो पॉपुलर नहीं कर पाए, अनलाइक शरद पवार साहब। शरद पवार साहब जो तुतारी सिंबल है उनका, वो चुनाव चिन्ह जो है शरद पवार जी का, वो बहुत अच्छे तरीके से हर जगह पर शरद पवार जी उसका प्रचार हर जगह पर कर पाए, जो कि उद्धव ठाकरे जी मशाल का नहीं कर पाए। इनॉग्रेशन भी फोर्ट में किए थे, शिवाजी महाराज जी के फोर्ट में किए थे, प्रतापगढ़ फोर्ट में कर दिए थे। क्या बात कर रहे और हो? उस चीज को विद ह्यूज पॉम्प सब तुतारी लेकर जिस प्रकार से एक उन्होंने क्रिएट किया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया अराउंड द तुतारी, एंड शिवाजी महाराज के साथ रिलेट कर लिया, एंड ही गेन 8 out of 10 80%. Yes, 80%. Highest strike rate. Yes, बिल्कुल। and आज In the whole of Maharashtra. All of Maharashtra. He says, look at my strike rate. I asked for less seats because I wanted to keep the unity in the Lok Sabha together, but that's not going to be in the assembly elections. That's what Sharad Pawar said. Now No, that is the one thing is, let's be very clear. The opposition, that is the India Alliance, was celebrating, as they rightfully should, that they've actually won somewhere around 234 odd seats. बिल्कुल That बिल्कुल। is the India Alliance, which Yes, is the cause of celebration because last time they didn't have so many. For example, the Congress had only 52 seats. Now they've got 99 plus 2. Yes. ठीक है साहब, लेकिन and look at the Samajwadi Party, they had 5 seats earlier. Now they've got 37. Exactly. तो सेलिब्रेशन का टाइम है, मैं मानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास फिर भी 240 हैं। Yes. अरे 63 सीट उनकी कम हुई है, फिर भी 240 हैं। तो आप उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है या अमित शाह जी का सवाल है या राजनाथ सिंह जी का सवाल है या नितिन गडकरी जी का सवाल है, वो उसी तरीके से काम नहीं करेंगे। अपने भीतर, अपने कोalition के अंदर he will be more accommodating, he will certainly talk more to people, but outside I don't think Mr. Narendra Modi can show any sign of weakness. So मैं he's सीधी not- बात बोल रहा हूँ। Exactly, आप जो कह रहे हो उसके where is the sign of weakness? He is not showing any weakness. When they wanted to trade आपको speaker, if you want consensus, give us the deputy speaker. He refused to talk on that. हम बात नहीं करेंगे। अब speaker के बात करें, आपको consensus पे आना है, आइए, नहीं आना, We'll win. and we win. We'll win. And they won. They won. And if the Congress was asking for division of votes, they would be actually ashamed They because will be exposed. because YSR और बहुत सारे लोग would have voted with Prime Minister Modi. That's what they said. खुलेआम बोल दिए। And मायावती, in fact, even Sharad Pawar ji said, आपने अपने कैंडिडेट के लिए हमसे बात किधर की है? जी, You are- exactly what Mamata Banerjee Mamata said. Banerjee said. So there was already cracks in the alliance. So it was better that Congress never asked for division of votes. I hope they don't make the same mistake as when Atal Bihari Vajpayee lost by 1 vote. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट पर गिर गई थी। Yes. 271 आए थे कांग्रेस के, 272 आए थे ऑपोजिशन के। Exactly. और उसके बाद जा करके अपना क्लेम लेकर के सोनिया जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ पहुंच गई थी राष्ट्रपति भवन, Exactly. बिना ऑपोजिशन को कंसल्ट किए। Yes. अरे भाई वो 272 वोट्स आपके लिए थोड़ी पड़े थे। Yes. वो 272 वोट्स अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ पड़े थे। Exactly. They were not Congress votes. They were not Congress votes. So is the case this time. These 234 are not from the Congress. आपके सिर्फ 99 हैं, 99 हैं आपके, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यू आर अ लार्ज चंक, सर्टनली ऑलमोस्ट 100 सीट्स विद इन पार्लियामेंट, उसको लेकर के आप चलिए और बहुत अच्छे तरीके से आप आर्ग्यू कीजिए, अपना केस रखिए।
That's it. In fact, Rahul Gandhi's change that we are already talking about, he seems to be more matured. He is taking out the right questions. He's asking the right questions. और जो उन्होंने कहा, in fact, right from Rahul Gandhi to Akhilesh Yadav to various CPM, CPI leaders, उन्होंने कहा कि allow the opposition voice to be heard in the parliament. I mean that's a. But one thing I'm very impressed with. Let me tell you this. Yes, sir. एक तो समाजवादी पार्टी का रिटर्न. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा कांग्रेस की 99 सीट. Exactly. And that young man, that Chandrasekhar Azad, who otherwise calls himself Ravan. बिल्कुल Ravan. He is one. Yes. Amazing, absolutely amazing. ये मानना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ प्रदीप जी कि उत्तर प्रदेश में जो दलित राजनीति है और पूरे देश में बल्कि जो दलित राजनीति है वो बदल गई है. जैसे विदर्भ में आप देखिए, विदर्भ में मायावती का बोलबाला था साहब. बिल्कुल. बहन मायावती जी के जो जितने वोट थे वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताते थे. इस बार नितिन गडकरी जी जीते और शायद एक और सीट मिली है. 2 सीट मिले. 8 सीट जो है उनके खिलाफ गई है. टोटली. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पूरा दलित वोट शिफ्ट हुआ है सर. Totally shift हुआ. In fact, they are not voted for Mayawati. That's right. And Mayawati has disbanded the entire Maharashtra committee. She said this committee means जो उन्होंने this she saw it. She saw it that she couldn't make an impact in Vidarbha, she couldn't make an impact in Marathwada. Many of these places where actually she had an impact. वहाँ पर नहीं हुआ तो entire committee को dismiss कर दिया है. She's forming a new committee where Maharashtra is concerned. But the damage is already done. Damage is already done. Even you बार बोल रहे थे कि विदर्भ गए बार बीजेपी 8 out of 10 जीता. अभी वही विदर्भ से शुरू होगा. 8 out of 10 BJP is going to win, but they lost 8 out of 10. And Mr. Prakash Ambedkar's hold over the people has also been exposed. It's exposed. नहीं है. Yes. दलित आपके साथ नहीं खड़े. नहीं खड़े सर. नहीं खड़े. दलित इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़ा है. बिल्कुल. शरद पवार साहब के साथ खड़ा है और उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है. सीधी सादी बात है. ये क्या होता है प्रदीप जी, कभी-कभी इतनी ज्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेट करते हैं ना कभी-कभी चीजें तो वो आपके खिलाफ जाती है. जैसे शरद पवार जी को देख लीजिए. अब शरद पवार जी इतनी अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजें, अगर सीधी तरह मेरा ये मानना हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वो अजीत दादा पवार को कॉन्फिडेंस में लेते और सीधे साधे तौर पर फ्रैंकली बोल देते कि भैया 1 2 3 4 ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बिल्कुल. आपने शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी को कुछ और बोल दिया, आपने सुप्रिया सुले जी को कुछ और बोल दिया, अपने जयंत अवार्ड जी को कुछ और बोल दिया, अब हमारे जो जयंत पाटिल साहब हैं उनको कुछ और बोल दिया. तो ये होता ही है, मतलब ये दिस इज नॉट डन. एंड नाउ मिस्टर पवार, now that his core group which is around him, yes, now he is very clear and very direct with them. I wish he had been very clear and direct earlier also. Sir, if you see earlier, a lot of people were suffering. Hassan Musharraf was suffering, Ajit Pawar was suffering, Sunil Gadkari was suffering, and many other leaders, Chhagan Bhujbal was suffering. They were really suffering because they had both the legs in jail, not one leg. Both the legs were in jail and they could be arrested any time because corruption is kadar kar diya tha and was so openly exposed. So they would be arrested. Where Sharad Pawar ji was concerned, ED sent him a notice and you had the whole NCP going out and ED backed out from there. So here Sharad Pawar ji probably tried their patience too long. अभी करेंगे, जाके मिलो, हम लोग बात करते. This happens when you are very strong. He was strong earlier and all these things work. But gradually, as you have said so many times, बिल्कुल. Earlier, Sharad Pawar साहब could control everything. Yes, sir. Because the center was with him. For the first time, center is not with him. However, Sharad Pawar ji has shown his political acumen and his hold on the ground by winning 8 out of 10. 8 out of 10, yes. On that there is no doubt. But he could not provide protection to his people. Exactly. Hassan Musharraf साहब, अजीत दादा पवार साहब, अपने जनाब छगन भुजबल जी, in fact Sunil Gadkari also, yes. Dilip Valse Patel you're talking about. The most trusted loyalist, personal assistant, personal secretary probably of Sharad Pawar ji. Sir, Praful Patel. बिल्कुल. मेरा ये कहना है कि उन्होंने छगन भुजबल साहब की एग्जांपल देख ली ना. छगन भुजबल साहब के साथ जो हुआ है वो उदाहरण है सबके लिए एनसीपी में. छगन भुजबल साहब जेल चले गए साहब. Yes. जेल चले गए. और जैसे ही एनसीपी महायुति में आ गई उसके बाद एवरीथिंग इज फॉरगॉटन. Yes. इनफैक्ट ही हैज गॉट अ क्लीन चिट. उनको तो क्लीन चिट मिल गई साहब. प्रफुल्ल पटेल साहब को क्लीन चिट ही नहीं मिली. हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जितनी भी अटैच प्रॉपर्टीज है वापस दी जाए. एंड ही ऑलरेडी गॉट देम बैक. Yes, he's got it. In fact, most Chhagan Bhujbal, Ajit Pawar, Gadkari, Praful Patel, everybody's got the cases out. So what out. could Sharad Pawar have offered as protection? Yes. Nothing. Yes. Let's be very clear. So ठीक है, लोग आपके साथ हैं, चुनाव आप जीत गए. और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो 10 नहीं, अगर वो 20 सीटें भी मांग लेते तो 20 में शायद उनकी 18 आ जाती या 17-18 आ जाती. सीधी बात. But actually Sharad Pawar ji exactly knew
which is a safe seat, I must to ask, not to offend Uddhav Thackeray, to keep the Congress together, and he managed it very well. I mean, Now the that is most expertise. fragile position among all these is that of Uddhav Thackeray. Yes, yes. उद्धव ठाकरे जी की जो पोजीशन है वो जरा डामाडोल है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। बावजूद कि उनको 9 सीटें मिली हैं, Yes. फिर भी वास्तविकता में पार्टी किधर है किधर नहीं है उसके ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। Exactly. मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और सर, तीसरी बिल्कुल। चीज है, एक और चीज असेंबली के लिए। हाँ, हाँ। असेंबली के लिए क्या है प्रदीप जी, अभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम 200 सीट लेकर के आ जाएंगे, 300, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो शरद पवार जी ने नंबर बोला ना 155 वही आने वाली है। 150 या 155 वो इसलिए बिकॉज इफ यू रिमेंबर द मुस्लिम वोट एंड द दलित वोट इज बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरियस पॉकेट्स। Exactly. वो स्प्रेड आउट नहीं है, नहीं, नहीं। हर असेंबली में नहीं है सर। कई कई असेंबली सेगमेंट्स ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोट है ही नहीं, जहां पे दलित वोट है ही नहीं। Yes, yes. तो वहां पर उद्धव जी कैसे जीतेंगे, Correct. वहां पर कांग्रेस कैसे जीतेगी? Yes, yes, तो वहां yes, पर तो एक बेसिक जो पहले फाइट होती थी पॉलिटिकल फाइट होगी। अभी क्या है, द ह्यूज चंक ऑफ मुस्लिम वोट्स Totally. केम टोटली टू उद्धव ठाकरे जी, Totally. टू शरद पवार साहब। बिल्कुल। शरद पवार साहब को इतना नहीं क्योंकि इतनी कॉन्फ्रेंसीज में वहां पर नहीं था। और तीसरा टू द कांग्रेस। और सबसे स्ट्रांग पोजीशन जो है इस वक्त वो कांग्रेस की है। Exactly. 14 सीटें हैं उनके पास। Yes, 13 plus 1. Yes, yes, yes. मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जैसे ही एक बार फिर विजय की तरफ एक बार उनका रुख होता है तो उनका रुख भी बदल जाता है। मतलब कांग्रेस जो है वो एक बार फिर अहंकार से फिर then they get filled up with a lot of arrogance and you can see what is happening. 19 of these chaps go across to meet Mr. Mallikarjun Kharge to ask him to relieve Varshatai Gaikwad of her duties as president of the Biल्कुल, MRCC. yes. You are asking your Dalit president Yes. to remove the Dalit president of the MRCC. You gotta hope. And Kharge seemed frustrated looking at these people asking for the demands. So, जो भी है, he knew what for they had come. He knew for what they had come, and he knew what they had demanded, and they said an unreasonable demand. Another thing that Sanjay Rao today saying that Uddhav Thackeray should be the chief minister projection before the alliance. That's what Bharat Soni also keeps saying. Everybody Yes. keeps saying. It'll be in the उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। लेकिन हमारे नाना पटोले जी तो कहते हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें उसी का बिल्कुल मुख्यमंत्री बिल्कुल, होगा। he is absolutely very clear and fun. In fact, Sharad Pawar ji playing very defensive. He said the alliance meet will take place. महायुद्ध MBA के मीट होगा, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे किसको क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन एक चीज तो है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भूल रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो बनी थी प्रदीप जी, इंडिया अलायंस जो बिल्कुल, बनी थी बिल्कुल। वो सिर्फ लोकसभा के लिए बनी थी। Yes, yes, yes. स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अलग है। Yes. जैसे इंडिया अलायंस, कोई अलायंस नहीं थी वेस्ट बंगाल में। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी रियलाइज कि इनके साथ अलायंस करके क्या होने वाला है, मेरा ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनकी ये तो सीटें जीतेंगे नहीं। Exactly. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। Yes, yes. So- She performed well. I mean, she hit the BJP out of turf, you can say. आउट ऑफ द ग्राउंड। Out of the ground. जी, जहां पर जो प्रशांत किशोर टाइप जितने लोग थे वो बोल रहे थे बीजेपी की 25 सीटें आ रही हैं, 30 सीटें आ रही हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो? You cannot do this just because Mr. Prashant Kishore. You look at Mr. Prashant Kishore's record. He has predicted only those elections where the person concerned was already very well entrenched in the Bilkul, state. exactly. जहां जहां पे सबकी जबरदस्त पोजीशन थी पहले से ही, वहां पर आपने जिता दिया। पहला इलेक्शन है जहां पर आपने नंबर बताया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पर आपको पहली बार आपका टेस्ट हुआ है। Exactly. पहली बार आपका Yes, टेस्ट yes, हुआ है। yes, yes, बिल्कुल। And you have failed miserably. Miserably. Miserably failed. And he accepted. Ultimately, he accepted. Ki I've gone wrong till now. I never projected the seats. I am not that kind of person who project the seats. But this time, unfortunately, I did. I shouldn't have done it. He shouldn't have. Yes, he should not shouldn't have. have. He should not have put out the numbers. Yes, yes. नंबर बिल्कुल। उनको नहीं बोलने चाहिए थे। Yes. हाँ, ये बात थी भाई, हम भी तो गलत हुए। I expected BJP to get over 300 बिल्कुल, seats. बिल्कुल। Let's be very clear. Yes, yes, yes. you did. मुझे ऐसा लग रहा था कि 300 सीट के ऊपर आएगी, न मोदी जी की खुद की। मैं भी गलत हुआ हूँ। 63 सीट कम आई है उनकी पिछली बार। Yes, मैं बिल्कुल। मुझे ये लग रहा था 305 तो आ जाएगी भैया, नहीं आई। तो उसमें अपनी गलती मानने में प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं बोलता हूं प्रदीप जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर अकल से काम करे, बहुत अच्छे तरीके से काम करे, आपके जितने स्टेट्स में जितने सत्रप्स हैं, जितने आपके जहां जहां पर जबरदस्त लोग हैं, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, Yes, 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 yes. महाराष्ट्र की बागडोर उनको देनी चाहिए। ठीक है मंत्री हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में क्या होना है क्या नहीं होना, उनकी रजामंदी के बगैर
मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कुछ करना चाहिए यहाँ पे। He's worked so long with Maharashtra. You've been so close to him when Gadkari is concerned. You saw he was the Maharashtra Pradesh Adhyaksh the. How nicely he took over and he had a fantastic relationship with Maharashtra. I mean, across the party With lines, everybody. with everybody. और And ऐसा नहीं है। He had the pulse of the people with him. प्रदीप जी ऐसा नहीं है कि वो बाला साहब के साथ लड़ते नहीं थे। Yes, yes. बाला साहब के सामने खड़े हो जाते थे, वो Yes. बोलते थे मैं नहीं करूंगा ये। Correct, correct, correct. ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं बीजेपी की तरफ से आया हूँ, शिवसेना की तरफ से नहीं आया हूँ। बाकी सब लोग मान गए, यहाँ तक कि गोपीनाथ मुंडे जी भी मान गए थे। मुझे अभी तक याद है नितिन गडकरी साहब ने कहा नो, won't happen. Okay. Right, I think you. It's All right. So what I'm trying to say is that as far as Mr. Gadkari is concerned, you will never find a person who is, how shall I put it, more loyal than Gadkari Sahab, who is more tuned to the entire thing than Gadkari Sahab. Bilkul, bilkul, So bilkul. rightfully speaking, they should have people like that in every state. They have people like that in every state. And the other thing is, सबसे बड़ी बात क्या है? आरएसएस के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए एक मैसेज है, as far as the RSS is concerned, you cannot antagonize or alienate the RSS. Without the RSS, let's be very clear, you are nothing. और जो अभी आप जीत करके आए ना 240, अगर अभी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आपसे अपना या तो पलड़ा झाड़ लेते हैं या आपके लिए काम नहीं करते, तो आप वापस 2 सीट पे आ जाएंगे, याद रखिए। That's what I think. Perfectly what you're saying. 2014 में जिस प्रकार से आरएसएस जाके यूपी में काम किया था, because they knew if BJP has to win India, they have to win UP. They worked 1 year, 1.5 year पहले जाकर वहां पर गली गली में काम किए, पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह जिस प्रकार से मेहनत की. We saw the same thing and BJP won 2014 convincingly. 2019 they worked similarly, fantastic. Even though the surgical strike, Balakot strike, दोनों था, in spite of the RSS with the BJP totally, they worked in every district, in every ward, every taluka of Uttar Pradesh, and BJP did magnificently because they won Uttar Pradesh, they won India. Now you had a head-on fight with RSS, and RSS really tore you apart. They never worked for you, and BJP. They're very lucky. Bilkul. They're very lucky. The RSS did not work for the Congress like they did in 1984. Yes. 1984 में हमें मालूम है, बिल्कुल 1984 में हमें मालूम है किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस के लिए काम किया। एग्जैक्टली याद रख लीजिए। एग्जैक्टली वो स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए। यस याद रख लीजिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं खुद फैन हूँ मोदी जी का, बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, लेकिन हर जगह पर जा करके अगर आप मोदी 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 करेंगे तो नहीं होगा, सीधी बात है। मोदी जी को अब ज़रा सा अहंकार अपना जेब में रखना पड़ेगा, आरएसएस को वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो आज तक देते आए हैं, और आरएसएस भी एक्सपेक्ट करती है। लेट्स बी वेरी क्लियर, द आरएसएस आल्सो अप्रिशिएट्स व्हाटएवर मिस्टर मोदी इज डन। देखिए साहब, आर्टिकल 370 रिपील हुआ, एग्जैक्टली कोई किसी ने हिम्मत नहीं दी करने की। नहीं राम मंदिर बना, जबरदस्त, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत हो रही है, बहुत जबरदस्त हुआ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो एजेंडा पर थी जो कि मोदी जी ने जिसको पूरा करने की कोशिश ना की। मेरी सिर्फ एक विनती है अभी बीजेपी से, अपना ओरिजिनल एजेंडा आप मत भूलिए। काशी विश्वनाथ कृष्ण जन्म स्थान आपको करना ही करना है। और तीसरी जो मेरे विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, प्लीज डिक्लेयर राम सेतु अ नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। बिल्कुल सर, सीधी बात। यस अगर आप ये सब चीजें छोड़ देंगे, इफ यू मूव अवे फ्रॉम योर कोर एजेंडा, you have lost 63 seats right now. There is a possibility that you may lose 163 seats. What will you do at that time? Exactly. I hope it doesn't happen. It doesn't happen. It shouldn't. It shouldn't. Ram Setu is something very dear. It has centuries old, mentions in every Purans of ours. आप उसको भूल नहीं सकते. If you forget that, you're forgetting the core ideology of the BJP and what the Absolutely. RSS stands for. Well, that's it. That's just about it in tonight's show. Hopefully, we should be back at our office very, very soon. But we can only be back at our office when the fire brigade gives us permission. फिलहाल मुंबई की फायर ब्रिगेड को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद. We are very impressed with the way you work. Fantastic guys. You saved us all. Thank you very much. प्रदीप जी और मेरी तरफ से, नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर Har महादेव. Har Maha.